میرا موبائل کہاں ہے؟ اس نے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولا۔ اسے یاد آیا کہ اس کو ایک کام کے سلسلے میں کسی سے ضروری ملنا تھا آج دوپہر میں۔ موبائل کیا کرنا ہے آپ کو؟ اپنی حالت دیکھیں، چھوڑ دیں جان موبائل کی اور ریسٹ کریں۔ کام ہی ختم نہیں ہوتے ہر وقت آپ کے۔ یار میری آنکھیں نہیں کھل رہی، میں نے کہاں جانا ہے؟ ایک بندے سے کام تھا، کچھ اس کو بلایا تھا ملنے کے لیے، اس کو انفارم کرنا ہے کہ نہیں آ سکوں گا۔ وہ بار بار آنکھوں کو کھول کر حواس قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گولی اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ کس کو انفارم کرنا ہے؟ میں کر دیتی ہوں، بتائیں مجھے۔ اس نے اس کا موبائل اٹھاتے وہ جیسے ہرگز بھی اسے موبائل نہیں دینا چاہتی تھی، جیسے ڈر ہو کہ وہ موبائل ملتے ہی اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ حد ہے یار، ویسے تم تو ممی سے بھی آگے ہو۔ ریحان نام سے کانٹیکٹ لسٹ میں دیکھو اور اس کو ٹیکسٹ کر دو کہ آج نہیں مل سکتا، کل بات کریں گے۔ اس پر نیند کا غلبہ بڑھ رہا تھا۔ جب ہی ہار مانتے اس کو اجازت دی، اس نے موبائل کی اسکرین آن کی اینڈ انٹر پاسورڈ۔ اس کا پاسورڈ بتائیں، ان لاک کیسے کروں؟ اس نے موبائل کی اسکرین آن کی۔ انٹر پاسورڈ۔ اس کا پاسورڈ تو بتا دیں، ان لاک کیسے کروں؟ ان لاک تو کر دیں، فنگر پرنٹ میچ کریں۔ وہ شاید سو چکا تھا، تبھی کوئی جواب نہ آیا۔ عورت شیر، موبائل کا پاسورڈ بتائیں تبھی میسج کروں گی نا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا ہلایا۔ 132420۔ وہ نیند میں بڑبڑایا تھا۔ ایشل بمشکل ہی سن پائی تھی، پتہ نہیں ٹھیک بھی تھا کہ نہیں۔ اس نے ڈیجٹس لکھنا شروع کیے، 13 پھر 24، 13 پھر 24 اور پھر 220 ڈائل کیا تو اسکرین ان لاک ہو گئی۔ اس نے کانٹیکٹس میں ریحان لکھ کر سرچ کیا تو اس کو نمبر مل گیا۔ اس نے میسج لکھنا شروع کیا، عورت شیر، ایحان ہیئر، میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے آج مل نہیں سکوں گا، بلکہ 3-4 دن تک بالکل بھی نہیں آ سکوں گا۔ جب ملنا ہوا میں خود رابطہ کروں گا۔ اس نے میسج لکھ کر سینڈ کر دیا، اچھے سے بھیجتی ہوں آپ کو، کل ملیں، ذرا جو سکون ہو ان کو۔ اس نے اپنے کارنامے پر خود کو خود داد دی اور موبائل سائڈ پر رکھ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ جب تک وہ سوتا تھا تب تک ہی دیکھ سکتی تھی، اس کے جاگنے پر تو ہمت ہی نہیں پڑتی تھی اس کی طرف نظر اٹھانے کی۔ اس کی کافی دیر یوں ہی بیٹھی دیکھتی رہی، ایک ایک نقش آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہی تھی۔ بلا شبہ وہ رب کائنات کا تراشا ہوا ایک شاہکار تھا، ایک حسین اور وجیح با ہمت اور غیور مرد، جس کی غیرت کا پیمانہ آج کل کے مردوں سے الگ اور بلند تھا۔ جس کی کبھی اس پر غیر ارادی طور پر نظر پڑی تھی تو اس نے اپنی نظروں کو تاعمر کے لیے عشق کا پابند کر لیا تھا۔ وہ چیخی، چلائی، روئی، گڑ گڑائی، نفرت کرتی رہی، بد دعائیں دیتی رہی، یہاں تک کہ ہر جتن کیا، مگر وہ اکیلا ہی ڈٹا رہا۔ اس کے برہنہ وجود کو اپنے نام سے ڈھک دیا تھا اس نے۔ اس سب میں چاہے اسے جو کرنا پڑا اس نے کیا۔ وقت لگا سب سمجھ آنے میں، مگر شکر تھا کہ بہت دیر نہیں ہوئی تھی، اور آج کل واقعی وہ خود کو بہت پرسکون محسوس کرتی تھی، جیسے کوئی بات ہی نہیں تھی کہ پھر کیا ہوا، وہ جو بے پردہ ہوئی تھی تو کیا ہوا، وہ کون سا غیر ہے، وہ تو خود اس کا پردہ ہے۔ عورت شیر، ایحان کے علاوہ کون ہے جس کو عشل کے جسم سے آشنائی ہو؟ سوائے اس کے شور کے کوئی بھی تو نہیں جو اس کے پوشیدہ سے واقفیت رکھتا ہو، مگر آج کل جناب اکھڑے سے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ناراض تھا، اور اس کو یاد آیا کہ اسے تو اس کو منانا بھی تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی اسے منہل کے دیے گئے مشورے بھی یاد آئے۔ وہ یوں بدک کر پیچھے ہٹی جیسے وہ جاگ رہا اور اس کے دماغ میں چل رہے منہل اور ظائشہ کے ان مشوروں کے بارے میں جان گیا ہو۔ وہ بور ہو رہی تھی کہ نہ باہر جانا چاہتی تھی اس کو چھوڑ کر، اور یہاں بھی اکیلے بوریت ہو رہی تھی۔ وہ تو اب گہری نیند میں تھا۔ عشل نے کمبل اس پر اچھی طرح برابر کیا اور پھر یوں ہی اس کا موبائل اٹھا لیا۔ پاسورڈ کیا تھا بھلا؟ اس نے ذہن پر زور ڈالا۔ 1324 کیا تھا بھلا؟ یہی تھا شاید، ہاں 132420۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، 13 جنوری عورت شیر کی ڈیٹ آف برتھ تھی، جبکہ 24 اپریل عشل کی تاریخ پیدائش اور 20 ستمبر ان کے نکاح کی ڈیٹ تھی۔ کیا یہ ایک اتفاق تھا یا عورت شیر نے خود یہ پاسورڈ لگایا تھا؟ اگر اتفاق تھا تو کمال تھا، اور اگر اس نے خود سیٹ کیا تھا تو اس کے لیے مقام حیرت تھا۔ کیا وہ اکھڑ سا بندہ اتنی گہرائی رکھتا تھا اس معاملے میں؟ اسکرین ان لاک تھی۔ اس نے گیلری اوپن کر لی اور کیمرے والا فولڈر اوپن کر لیا۔ اس کی بے شمار پکچرز تھیں، بہت سی پکس میں اس کے ساتھ دلشیر، ظاہر، زریز اور عرش تھے، جبکہ کافی سے زیادہ پکس اس کی اور مومن شاہ کی تھیں، باقی اس کی اکیلے بھی کی تھیں، کچھ فیملی ایونٹس کی تو کچھ اس کی آفیشیل۔ اور جو اس کی اکیلے کی پکس تھی وہاں سے دیکھنا شروع کیا اس نے، ایک ایک کر کے وہ دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کا ڈریسنگ سینس کمال تھا، ہر جگہ ہر پوز میں وہ شاندار لگ رہا تھا۔ یہ بندہ پولیس لائن میں کیوں آیا؟ اس کو شوبز میں جانا چاہیے تھا، ماڈلنگ کرتا۔
काफ़ी देर वो उसकी पिक्स देखती रही, फिर जो बहुत ज़्यादा पसंद आई मार्क करके शेयर करते व्हाट्सएप पर ले आई और अपना नाम सर्च किया। ये क्या, ईशल के नाम से कोई नंबर सेव ही नहीं था। उसको शदीद हैरत हुई कि उसने ईशल का नंबर सेव नहीं किया अपने मोबाइल में। तैश के मारे उसका बुरा हाल हुआ। उसने डायल पैड निकाला ताकि अपना नंबर तो सेव करे। उसकी इतनी हिम्मत, हज़ारों नंबर रखे हुए थे और एक बीवी है और उसका नंबर ही सेव नहीं। उसने अपना नंबर डायल करना शुरू किया। चंद डिजिट के बाद ही उसका ऊपर नंबर शो होने लगा। उसकी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। अपना नंबर नहीं बल्कि जिस नाम से सेव किया था वो देखकर सकूने कल्ब। उसने वो नाम 1-2 बार, 3-4 बार, जाने कितनी मर्तबा पढ़ा और पलट कर उसको देखा जो उसी तरह से सोया हुआ था। कितनी गहराई रखता था ना वो शख्स। उफ, मैं कैसे उसके दिल तक रसाई हासिल कर सकूंगी, कहाँ तक पहुंच पाऊंगी। बंद सहीफों जैसा वो बंदा खुलता ही नहीं था। और आज जो चीज़ें उसकी आंखों के सामने आ रही थीं वो हकीकतें ईशल के लिए वाकई हैरान कुन थी। तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। उरद शेर की आवाज़ उसके कानों में वैसे ही उभरी। क्यों? चीखते हुए अपना सवाल करना भी सुनाई दिया था उसको। क्योंकि उरद शेर का सकून जुड़ चुका है तुम्हारे साथ। उसका दिया गया जवाब आज भी उसको याद था। जिस बंदे को उसने तंग करने की इंतहा कर दी वो उसको अपना सकून कहता था। हालांकि उसकी ज़ात से सिवाय नफरत और धुतकार के क्या पाया था उस बंदे ने, मगर फिर भी वो उसको अपने दिल का सकून लिखता था। 2 मोती टूट कर बिखरे थे। उसने आंसू साफ करते दोबारा से पिक्स वाला फोल्डर ओपन किया और जो पिक्स चूज़ की थी अपने नंबर पर सेंड करके उसकी तरफ से डिलीट कर दी। ईशल के पास उसकी एक भी तस्वीर न थी। व्हाट्सएप बंद करते उसने वाईफाई ऑफ कर दिया। उसका मोबाइल भी साइलेंट पर कर दिया और फिर से पिक्चर्स देखने बैठ गई। फिर बैक करके स्क्रॉलिंग करने लग गई तो लास्ट पर एक फोल्डर नए से हैरत हुई। या खुदा, ये बंदा है या कोई हैरत कदा है। ईशल उरद शेर के नाम से बनाया गया वो फोल्डर उसने बेताबी से ओपन किया तो उसकी चंद पिक्चर्स थी उसमें। एक पिक्चर उनके निकाह की थी, 2-4 निकाह के बाद की थी। 2-3 पिक्स में वो सबके साथ ड्राइंग रूम में बैठी रही थी, तो एक जगह वो लॉन में बैठी थी। तस्वीर का एंगल बता रहा था कि ये यकीनन उसने अपने कमरे की बालकनी से बनाई होगी। चंद पिक्चर्स उनकी शादी की थीं और सरासर लाइल्म थी उसने ये पिक्चर्स कब क्लिक की थी। मुख्तलिफ पोज, मुख्तलिफ जगह, मुख्तलिफ औकात में ली गई उन पिक्स में जो चीज़ मुश्तरक थी वो था ईशल के चेहरे पर फैला दुख और आंखों की नमी। उन दिनों वो यही काम तो किया करती थी, हर वक्त रोना धोना। एक शादी वाले दिन की पिक्चर काफ़ी नुमायाँ हो रही थी, जैसे चेहरे के बिल्कुल पास से ली गई हो। उसने पिक्चर ओपन की तो अंदाज़ा हुआ कि ये पिक क्रॉप करके सिर्फ उसके चेहरे को फोकस किया हुआ था, मगर यहाँ एक और हैरत उसकी मुंतज़िर थी। उस पिक के नीचे लिखा गया कैप्शन था, जब वो दुल्हन बनी थी गुलाब सूख गए थे जलन के मारे, वो पागल होने को थी। दिल किया झंझोड़ कर उसको उठाकर बिठा दे और फिर पूछे कि तुम वो जो दिखाई देते हो या ये जो तुम छुपाए फिर रहे हो मुझसे। हाँ, मैंने मोहब्बत नहीं की, वाकई बहुत कोरा हूँ इस मामले में। तुम चाहो तो अपना बना लो, अपने रंग में रंग लो। कुछ बेबसी और कुछ चाह से कहा गया उसका एक एक जुमला या एक और जुमला उसकी समातों में ताज़ा हुआ और फिर फैसला हो गया। उसने उसको मनाना था हर कीमत पर, चाहे जो भी करना पड़े, क्योंकि वो औरत शेर को नहीं खो सकती थी, हरगिज़ नहीं। वो मोमिन शाह के ना मिलने पर सब्र कर सकती थी, मगर वो औरत शेर एहान को खो जाने पर ज़ब्त नहीं कर पाएगी। वो उसके बगैर नहीं रह पाएगी। तो जब उसके बगैर रहने का हौसला न था तो उसके साथ रहने के लिए उसको मनाने की हिम्मत तो करना ही थी ना उसे। फिर जो काम मिनहल और जायशा लाख समझाने पर भी उससे ना करवा सकी, वो काम उसके मोबाइल में छुपी उन हैरतों ने करवा लिया था। मीराल की आंख खुली तो कमरे में खुद को अकेले पाया। वो जो सारी रात उसका साया बना रहा था अब कहीं नजर नहीं आया था तो दिल जाने क्यों बेचैन सा हुआ। उसको यहीं होना चाहिए था उसके पास, तो फिर उसके सोए सोए कहाँ चला गया। अपने बाल समेटकर जूड़ा बनाते उसकी नज़र खुद पर पड़ी तो शर्म के मारे निगाह यूं झुक गई जैसे वो सामने ही खड़ा। वो उस वक्त उसकी वाइट शर्ट में थी जो यकीनन वही उसको पहना कर गया था, मगर खुद कहाँ था, उसको उठाया क्यों नहीं। उसने कुछ परेशान होते दिल को समझाते अपना उलझा बिखरा वजूद समेटा और घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो 12:15 का वक्त हो रहा था। या मेरे अल्लाह, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही। उसको जैसे शौक लगा। वो बिस्तर से उतरने लगी तो साइड टेबल पर पड़े पेपर पर नज़र गई तो हाथ बढ़ाकर उठा लिया। मॉर्निंग माय लव। उसकी नज़र पहली सतर पर झुक गई थी, फिर कुछ हिम्मत मुश्तमे करती आगे पढ़ना शुरू किया। सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं आपके पास बैठा आपका चेहरा देखते हुए आपके लिए मैसेज लिख रहा हूँ। ये सच है कि जब ज़िंदगी तमाम तरानाइयाँ और दुनिया की सारी खूबसूरतियाँ आपके बिस्तर पर आपकी तहवील में हो तो फिर काम पर जाने को दिल किस काफिर का करेगा। लेकिन हाय ये काम धंधे कभी जो जान नहीं छोड़ते।
लेकिन हाय ये काम धंधे कभी जो जान छोड़ते हो। अभी का मसला ये है कि एक केस की हियरिंग है आज, और मुझे पहले ऑफिस जाना है, फिर कोर्ट पहुंचना है, इसलिए ना चाहते हुए भी जा रहा हूँ। आपको उठाया इसलिए नहीं कि मैंने बहुत तंग किया, आपको सोने ही नहीं दिया, इसलिए फिर इतनी सुबह आपको डिस्टर्ब करने को दिल नहीं किया। सोचा अच्छा ही है मेरी गैर मौजूदगी में नींद पूरी कर लें, वरना तो फिर खैर इससे पहले आप शर्म के मारे आगे पढ़ना ही बंद कर दें। इतना बता दूं कि फ़िक्र मत कीजिएगा, इंशाल्लाह लंच आपके साथ ही करूँगा। आपका मोमिन शाह। वो गुलनार होते चेहरे के साथ वो पेपर वापस रखते उठकर फ्रेश होने चल दी कि पहले इतना लेट हो गई थी। वो बाहर आई तो जाने क्यों उसको इतनी शर्म आ रही थी, जैसे गुजरी रात का किस्सा सब जानते हो। उसके कदम आगे बढ़ने से इनकारी हो गए तो वो वहीं से वापस कमरे में भाग आई थी अपने। दोपहर के 2 बज रहे थे जब काम से फ्री होकर मोमिन शाह घर वापस आया था। सबको सलाम करते उसने अतराफ में निगाह दौड़ाई। जो चेहरा मतलूब था वो आसपास दिखाई नहीं दिया। ईशल उड़द चेर उठ के आया या सो रहा है अभी? हुरिया ने नीचे आती ईशल से इस्तफसार किया, जबकि उनके सवाल पर आगे बढ़ते मोमिन के कदम रुक गए। सो रहे हैं अभी तक? उड़द शेर घर पर है इस वक्त? उसने पलट कर ईशल से सवाल किया। जी उनकी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ तबीयत को? और घर कब आया वो? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो? वो सवाल पे सवाल करता बिना जवाब लिए आगे बढ़ गया। मतलब खुद जाकर देखेगा वो। अच्छा ठीक है, यखनी बना रही हूँ उसके लिए, जब उठे तो पिला देना। अगरचे वो इस तरह के परहेजी खानों के मामले में बहुत नखरे करता है, मगर पिलानी तो पड़ेगी ना। और तुमने भी, इरहा बता रही थी, ढंग से नाश्ता नहीं किया। चलो आओ अब तुम भी कुछ खाओ, और अगर खुद कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी, और अगर खुद बीमार पड़ जाओगी तो उसका ख्याल कैसे रखोगी? हुरिया उसे साथ लिए आगे बढ़ गई। मोमिन ने उसके माथे को और गर्दन को छू कर देखा। बुखार तो अब नहीं था, मगर गहरी नींद सो रहा था, इसलिए वो खामोशी से पलट आया और रुख अपने कमरे की तरफ किया। वो सामने ही मगन सी बैठी किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ थी। वो अक्सर ही उसको कोई ना कोई बुक पढ़ते हुए देखा करता था। उसको यूं बुक में मगन देखकर उसके जहन के पर्दे पर एक बहुत पुराना मंजर उभरा। किताबों से भरी लाइब्रेरी और कोने वाली मेज़ पर किसी किताब के मुताले में मगन वो छोटी सी लड़की जो सबसे बेखबर रहती थी। कौन आया, कौन गया, किसने उसको देखा, कौन उसको देखकर ठहर गया, उसको कुछ खबर नहीं होती थी। आसपास से बिल्कुल बेखबर होती थी वो लड़की। मीराल ने किसी एहसास के तहत चौंक कर निगाह उठाई तो वो दहलीज पर खड़े बज़ाहिर उसको देख रहा था, मगर वो जो जैसे किसी ख्याल में गुम था। वो किताब साइड पर रखते हुए उठ खड़ी हुई, मगर उसकी तरफ बढ़कर उसको मुतवज्जो करने की हिम्मत मफकूद थी। उसको सामने पाकर वो बुरी तरह से नर्वस हो रही थी। मोमिन जैसे किसी ख्वाब से जागा था। सर झटक कर वो आगे बढ़ा। अस्सलामुअलैकुम। मुस्कुराकर उसको नज़रों की गिरफ्त में लेते वो दरवाज़ा बंद करते आगे बढ़ा। वालेकुम अस्सलाम। मध्यम सी आवाज़ में जवाब देते वो कंफ्यूज सी अपनी जगह पर खड़ी थी। कहिए क्या हाल है वाले? मुसलसल मुस्कुराते हुए वो मोबाइल, गाड़ी की चाबी और वॉलेट वगैरह निकाल कर ड्रेसिंग टेबल पर रखते उसकी तरफ बढ़ा और हाथ बढ़ाकर उसको अपने हिसार में लिया। चिट्ठी आप सुनाएं? हम क्या सुनाएं? हमसे पूछें, हम अगर बताएंगे तो फिर आप शर्माएंगी, और जब आप शर्माएंगी हम खुद पर काबू नहीं रख पाएंगे। उसके बालों में चेहरा छुपाते वो फिर रात वाली टोन में बात करने लगा। मीराल की तो जान पर बनाई थी उसको फिर इस तरह दीवाना होते देख। लंच, उसको बर वक्त याद आया कि उसने लंच साथ करने का बोला था। करते हैं लंच भी। वो उसके गिर्द अपना हिसार मजबूत कर गया। मुझे भूख लग रही है, नाश्ता भी नहीं किया मैंने। वो उसका ध्यान खुद पर से हटाने को जल्दी को बोली। क्यों नाश्ता नहीं किया? वो मैं लेट हो गई थी। नज़रें झुकाए उसने, जैसे अपने जुर्म का इतराफ़ किया। तो क्या हो गया अगर लेट हो गई थी? यहाँ कौन सा फिक्स टाइमिंग है कि उसके बाद खाने पीने को कुछ ना मिलेगा? मैं नीचे नहीं गई, मुझे नहीं जाना बाहर। वो मैच्योर सी लड़की उस पर बहुत ज़्यादा पजल हुई। क्यों नहीं जाना भाई, बाहर ऐसा क्या है? वो कुछ कुछ समझ गया था, मगर फिर भी अनजान बना। सब हैं बाहर। उसने जैसे उसकी मालूमात में इजाफा किया। तो आप कमरे में रहना चाहती हैं? मतलब सिर्फ मेरे पास रहना चाहती हैं? बाखुदा मैं भी यही चाहता हूँ कि बस आप मेरे आस पास रहें हर पल, बाकी सब भूल जाएं। बस मोमिन शाह को याद रखें, उसके करीब रहें। वो सारी बात जानते हुए भी उसको तंग करके अपनी मर्जी के मतलब निकाल चुका था। वो बुरी फंसी थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहे। जो कहना चाह रही है वो समझ क्यों नहीं पा रहा था। मुझे भूख लगी है, उसने फिर से उसको याद दिलाया कि असल बात की तरफ आए, या शायद वो उसको असल बल्कि उसके मतलब की बात से हटाना चाहती थी। चले मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर चलते हैं नीचे। और ये कमरे में बंद होने की क्या तुक बनती है भला? आपने कौन सा कोई जुर्म किया है जो छुपे बैठी हैं? बाहर निकलें, जैसे पहले सबके साथ उठती बैठती हैं वैसे बैठें। मुझे शर्म आ रही है। एक तो ये आपकी शर्म मरवाएगी मोमिन शाह को। वो फिर उसको पकड़ चुका था। अल्लाह ना करे वो तड़प ही तो गई थी। फिर क्यों इतना शर्माती हैं?
मैं गई थी बाहर, मुझे यूं लगा जैसे सब मुझे ही देख रहे हैं। वो उसके सीने में मुंह छुपाते जुमला अधूरा छोड़ गई। अगर आप यूं ही शर्माती रहेंगी तो सब सच में कुछ ना कुछ जान जाएंगे जो आप सबसे छुपाना चाहती हैं। आपके चेहरे पर बिखरे ये रंग सारे राज अफशा कर देंगे। उसका चेहरा नज़रों के सामने करते वो उसके माथे पर लब रखते हुए बोला और उसे नॉर्मल एक्ट करने का मशवरा दे रहा था। अब रिलैक्स हो जाएं और मेरे कपड़े निकाल दें, फिर लंच करते हैं। तब तक उरद शेर उठ जाए तो उसकी भी तबीयत साफ करनी है। क्यों, भाई ने क्या कह दिया अब? उसने अलमारी का पट खोलते सवाल किया। बीमार होकर पड़ा है रात से, ऐसा कोई ढीठ है, मजाल है जो बात मान ली। मैंने बोला भी था कि कुछ देर घर जाके आराम कर लो, मगर नहीं माना। अब जब बिल्कुल सकत नहीं रही तो अब घर आया है। ओहो, मुझे भी नहीं पता चला। सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, फिर चलते हैं। उसने जल्दी जल्दी कपड़े निकाल कर उसको थमाए।